C. If you are taking the ls command like ls, okay. अब ls basically क्या करता है? now being recorded. Okay. So if we talk about this ls command, this is for listing bug. So wherever our C program will be present, okay, even you can give the location also, you can give the path also. So by taking that particular path, it will list out all the files and directories present in the current location. Okay. So for example, if my file is saved at particular on the desktop, if my file is saved on, if my C program which I'm writing for listing out all the files and directories of the current folder, then if my program is present in the on the desktop, then that program will find out all the files and directories. It will list out all the files and directories of the current folder. Okay. तो उसके लिए वी कैन हैव अ शॉर्टकट. एक शॉर्टकट मैं आपको खुद बता दूंगा. सिंपल एक शॉर्टकट है उसके लिए. सिंपली आपको अपने सी प्रोग्राम में सिस्टम कीवर्ड यूज करना है. तो सिस्टम के अंदर आप जो भी कमांड देंगे दैट कमांड विल वर्क आउट फॉर दैट. ओके. बट हम लोग को ऐसे नहीं करना है, हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन करना है उसका. ठीक है. So if you talk about the implementation part, then obviously you have to do it in the C programming or Python, जिसमें भी करना है आप लोग को उसमें कर सकते हैं. तो मैं आपको जस्ट एक सैंपल बता दूं. सिंपल देखो, यू कैन राइट ऑन द, मैं आप लोग को डायरेक्ट बताता हूँ. सी वी कैन डू सो. ये हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको करना नहीं है. बिकॉज दिस इज द शॉर्टकट भी नहीं है, शॉर्टकट का शॉर्टकट है. ठीक है. बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट है. ठीक है. So like यहाँ से पहले मैं हटा देता हूँ ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए. This is just for your reference purpose. Okay. So this is my simple C program. This is my simple C program. Okay. तो यहाँ पर आपको whatever command you want to execute, you just have to write system bracket के अंदर आपको उसको क्या करना है, डबल देना. ठीक है. So ls command डालता हूँ. So if you want to execute the ls command, then simply you can put like that. सेव किया F8, F9, F1. Okay, it will show all the files and folders present in the current directory. Okay, so right now my sample.c, as you can see, I have a C program which is sample.c, which is present on desktop. Okay, system is one keyword we can use in the C programming language. Okay, so हमको ऐसा करना नहीं है, मैं आपको जस्ट ऐसे करके बता रहा हूँ बस कि how it is presenting all this thing. तो इसी को हम लोग को सी प्रोग्रामिंग में करना है. ठीक है. अच्छा, एलएस के अंदर हमारे पास में देखो, अगर ये मैं इसको रन करता हूँ, सो इट विल शो ऑल दी फाइल्स एंड फोल्डर. ऐसे ही आप लोग को दिखा रहा है. बट इसको हम लोग उसको लिस्ट आउट करते हैं. एलएस स्पेस -1 अगर करेंगे तो आपको एक लाइन में सब दिखाएंगे. F8, F9, F5. It will show all the files and folder present in the directory. Okay, present in the current working directory. तो एक लाइन में आपको शो कर. ठीक है. तो ऐसे ये एक हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं. दूसरी हम लोगों ने कमांड यूज की है, चलो pwd कमांड. जैसे कि आपके जितने भी आपके कमांड्स है लिनक्स कमांड, उस सबको आप सिस्टम में यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर इसको हमने pwd, it will print all the it will show the current working directory. It will print the working directory, जो डायरेक्टरी में आप अभी है. और आपका प्रोग्राम अभी फिलहाल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है. और डेस्कटॉप का जो लोकेशन है वो आपको बता देंगे. लेट मी शो यू F8, F9, F5. तो सी दिस इज योर pwd का आउटपुट, home/mukhtar/desktop. So I just want to show you that कि how this particular keyword is working. So जैसा ये काम कर रहा है वैसे हम लोग को अपने प्रोग्राम को काम करवाना है. ठीक है. So you have to develop a program in such a way that it will work in the same manner as my ls, that my system bracket में ls-1 is working. Okay, तो इसी को हम लोग को एक C प्रोग्राम में करना है. You can take few more example. यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने पिंग कमांड भी यूज किया हूँ. ऑल ऑफ यू नो कि पिंग कमांड कैसे यूज करते हैं हम लोग. हम लोग एक बार यूज करके देख लेते हैं. सिस्टम ब्रैकेट के अंदर आपका डबल कोट्स में पिंग कमांड, आप अगर सिंपल पिंग करके आगे स्पेस अगर वो देते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को पिंग करेंगे. आपका पिंग कमांड जानते हैं ना आप लोग क्या करते हैं? अरे बाबा, पिंग कमांड जानते हैं ना? जाने नहीं जाने? नहीं जानते?
अरे वाह, ये आप लोग अगले सेमेस्टर में नेटवर्क पढ़ने वाले हो। एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट द पिंग कमांड? मैं सोच रहा हूँ शायद आप लोगों को पता है। एक्चुअली जो सारी जो लिनक्स की बेसिक कमांड्स भी है ना, उसी में उसमें आपकी पिंग कमांड भी आती है। पहले पिंग कमांड देखा जाए फिर, ऐसा है तो ये जो हमारा 1 आवर जो है वो 1 आवर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये पार्ट के लिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो टाइम है नहीं हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद ही करना है। तो बेसिकली आपकी पिंग कमांड, बेसिकली पिंग कमांड इज अ लिनक्स कमांड which is used to find, it is used to find the network status of the destination. It is used to find the network status of the destination, whether the system is live or not, whether system is up or not. Okay, तो अगर सिस्टम अप है, आप मतलब चालू है, स्टार्ट है, ऑन है, और उसका वो नेटवर्क में है, तो दोनों को मिला के बोलूंगा मैं द सिस्टम इज अप नाउ। ओके, बोलते हैं ना भाई, भाई सिस्टम अप है या डाउन है, तो सिस्टम अप है इसका मतलब कि सिस्टम ऑन भी है और सिस्टम मतलब आपका नेटवर्क में भी है। सिस्टम डाउन है मतलब तो कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वैसे ही मुझे अगर किसी सिस्टम का, फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस 172.16.16.1, इसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू चेक वेदर माय सर्वर इज वर्किंग और नॉट। ऑब्वियसली इट इज वर्किंग, सो दैट आई एम गेटिंग द इंटरनेट, सो आई कैन यूज द पिंग कमांड। ठीक है, सो पिंग कमांड हम लोग उसके लिए यूज करते हैं 172.16.16.1। सिंपल एंटर करूंगा, इट विल गेट द रिस्पॉन्सेज। ओके, वहां से रिस्पॉन्सेज ला रहा है, देखो 64 बाइट्स फ्रॉम 172.16.16.1 ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट विल गेट ऑल द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, एग्जांपल आके देगा। टाइम टू लीव, टीटीएल का जो टाइमिंग है वो भी एकदम कांस्टेंट आ रहा है, और टाइमिंग ये उसकी टाइम कितना सेकंड में आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर उसको रोकना है तो कंट्रोल सी प्रेस करो, so it will show you that 28 packets transmitted, 28 received, 0 और टाइम इतना इतना टाइम लगा। ठीक है, तो ये आपको ये बताता है कि सामने वाला सिस्टम को आपने कुछ पैकेट भेजे, उसने आपको रिस्पॉन्सेज भेजा, मतलब 28 पैकेट ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एंड 28 पैकेट रिसीव्ड, 0% लॉस हुआ। ठीक है, मतलब कि सामने वाला सिस्टम काम कर रहा है, ये फाइंड करने के लिए बताता है। अब पिंग कमांड को बहुत अलग अलग वे में यूज करते हैं, लाइक इसको मैं यूज हम लोग और थोड़ा सा यूज करते हैं। आप आप कहीं से भी इंटरनेट से निकाल लो गूगल का आईपी एड्रेस, अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं पता है तो सिंपली यू कैन डू सो पिंग, ठीक है, google.com। मैंने क्या टाइप किया, पिंग करो google.com को पिंग करो, मैं एंटर करूंगा। अभी गूगल, अभी अभी जो भाई साहब है गूगल को पिंग करने में लगे हैं, तो अब ये गूगल को पिंग हो गया। गूगल का आईपी एड्रेस मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने पिंग कर दिया। ठीक है, सिस्टम स्लो चल रहा है बहुत शायद, देखो ना, मैंने उसको स्ट्रेच किया हूँ। हाँ, अब दिखा रहे हैं, तो ये पिंग कर रहा है गूगल के। अब गूगल का जो नियरेस्ट सर्वर रहेगा वो वहां से क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर सर्वर से वो रिस्पॉन्सेस ला रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो आईपी एड्रेस है, कंट्रोल सी करता हूँ मैं, उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 142.250.183.142। तो ये अभी गूगल का जो नियरेस्ट सर्वर है मेरा, मतलब मेरे नजदीक जो गूगल का नियरेस्ट सर्वर है वो यहाँ से पिंग कर रहा है। टोटल 33 पैकेट ट्रांसमिटेड, 21 रिसीव, 36% लॉस है। मतलब कहीं मतलब स्टार्टिंग में हो नहीं रहा था ना, स्टार्टिंग में, बाद में फिर हुआ। सो टोटल 33 पैकेट यहाँ से मैंने ट्रांसमिट किया, मतलब मेरे सिस्टम ने उसका उसको भेजा, उसमें से 21 वापस से 21 का रिप्लाई आया, और उसमें से 36% क्या है, पैकेट लॉस हुआ। मतलब आपके 33 में से ओनली 21 रिसीव हुए फीडबैक, और बाकी का लॉस्ट हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सामने वाले का नेटवर्क स्टेटस चेक कर सकते हैं। इफ यू नो द आईपी एड्रेस ऑफ योर होम, अगर आप अगर आपको अपने घर के सिस्टम का आईपी एड्रेस पता है तो आप इससे पूछ लो, यहाँ बैठे बैठे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो यू विल कम टू नो द नेटवर्क स्टेटस ऑफ द डेस्टिनेशन मशीन। तो पिंग कमांड इतनी काम की है। नेटवर्क वाले सबसे पहले नींद में से उठ के सबसे पहले पिंग कमांड टाइप करते हैं। तो नेटवर्क एडमिन होते हैं ना, सबसे पहले नींद में से उठ के आके पिंग कमांड के वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, अगर सिस्टम डाउन हो गया, नेटवर्क डाउन हो गया, ये सर्वर वो सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, कहीं कुछ डाउन तो नहीं हुआ, ये चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पिंग कमांड डालते हैं। पिंग इज द वेरी बेसिक कमांड इन द नेटवर्किंग डोमेन। ओके,
तो पिंग कमांड को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं। पिंग कमांड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ऑप्शन देखने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताया था, MAN कमांड, दैट इज फॉर द मैनुअल एंट्रीज। MAN कमांड इज यूज फॉर द मैनुअल एंट्रीज। ओके, आप लोग को थोड़ा छोटा लग रहा है, लेट मी सी वेदर आई कैन टेक्स्ट कस्टम फॉन्ट 12 से हटा के थोड़ा 15 कर देते हैं। ओके, अरे यार, चलो ओके। तो पिंग कमांड को हम लोग यूज करते हैं। पिंग कमांड के अगर आपको और भी ऑप्शंस चेक करने हैं, सो यू कैन चेक विद द मैनुअल एंट्रीज। ओके, एंड फॉर इन ऑर्डर टू नो द मैनुअल एंट्रीज यू हैव अ गुड कमांड दैट इज MAN। ओके, if you want to know more information about any command, then you just type MAN man, and you want to know about कौन सी कमांड, पिंग कमांड, पिंग, ठीक है, तो मैन पिंग। if you press enter it will show all the information, whatever information you required। तो पिंग कमांड सेंड ICMP इको रिक्वेस्ट टू नेटवर्क होस्ट, सामने वाले को क्या भेजें। बहुत स्लो चल रहा है, देखो अभी तक तुमको शो नहीं किया, अब शो किया है। ये मेरी स्क्रीन कब से आ गई थी यहाँ पर। ओके, नॉट अ बिग डील, यहाँ पर हम लोग आ ही गए थे। सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू कैन सी -C, -F, -I, माइनस कैपिटल I, -L, -M, minus capital M, minus capital N. So all these are the options which are given. You can use this accordingly. Okay. So let me use one of the option. So ping command. Okay. जैसे इतने रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल देखो मैंने टाइप किया google.com, ठीक है। तो google.com के लिए मैंने टाइप किया, जैसे ही एंटर किया सो इट विल टेल मी, इट विल गिव द रिस्पॉन्सेज। ओके, तो रिस्पॉन्सेज आप लोग देख सकते हैं, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अब ये रिस्पॉन्सेज आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज ही मुझे मिले, ठीक है। मुझे खाली 2 रिस्पॉन्स, 3 रिस्पॉन्स, 5 रिस्पॉन्स, 10 रिस्पॉन्स, उतने ही आपको चाहिए। उसके लिए आपके पास में एक ऑप्शन है -C करके, तो C मीन्स काउंट, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ये स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, एंड आई यूज दिस कमांड, ठीक है। तो भाई साहब पिंग -C इज फॉर काउंटिंग पर्पज। काउंट कितना चाहिए आपको, पिंग का काउंट कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल 4 का काउंट चाहिए, मतलब आपको 4 रिस्पॉन्सेज ही चाहिए खाली। तो 4 गूगल भाई साहब .com, ठीक है, एंटर। 1 रिस्पॉन्स, 2 रिस्पॉन्स, कितने हैं भाई, 4 पैकेट, हाँ। तो देखो अब यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है वो खाली 2 पैकेट्स आपके गए हैं, और उसने उसने जो है तो खत्म भी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पैकेट ट्रांसमिटेड हुए और खाली 2 रिसीव हुए, इसीलिए 2 आपको यहाँ पर दिखाया नहीं उसने। और 2 जब रिसीव, ओनली जब 2 रिसीव हुए तो समझ जाओगे 50% लॉस है। ओके, तो ये आपके, या ये इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक पिंग कमांड है। एक्चुअली पिंग कमांड के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में इसके लिए बता दिया कि एक इम्पोर्टेंट कमांड है, इसके लिए हम सबको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे हमारे सी प्रोग्राम की। सो यू पीपल हैव टू मेक वन प्रोग्राम, ओके। इवन आई से दैट लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, बट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यू कैन टेक एनी प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट एंड just study, but ऐसा नहीं है कि just लेके खाली कॉपी पेस्ट कर दिए, that is not our task। okay, if you are taking any program then just take it, study on it, and then at least work on it कि इसमें क्या improvement हो सकते हैं and how this program has been made। okay, then how you can make some improvement in order to you can just do the customization part also। so जो भी हो सके उसको आप लोग थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ठीक है। that is always a good thing। okay, if you even you are taking the program from the internet or any other sources, ठीक है। so this one ping command को मैं यूज करता हूँ -C काउंट, और काउंट आना चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 का काउंट आना चाहिए, और गूगल से रिस्पॉन्स लेते हैं google.com, ठीक है। इसको सेव किया, F8 F9। अब जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो प्रोग्राम को रन करने के बाद सबसे पहले ls वाली कमांड रन होगी, फिर pwd वाली कमांड रन होगी, उसके बाद में पिंग का आपको आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। 1 2 3
4 डन। इसके अंदर से आपका एक पैकेट लॉस हुआ है। देखो सबसे पहले आउटपुट कैसे आपको उसने शो किया है, ये आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर पहले बता दिया यूजिंग कमांड। उसके बाद में सेकंड कमांड के थ्रू ये वाला आउटपुट आया। उसके बाद में थर्ड कमांड आपका पिंग गूगल, जिसके अंदर उसको 4 रिस्पॉन्सेस मिले हैं और पांचवा जो रिस्पॉन्स था वो मतलब क्या हो गया, रिसीव नहीं हुआ, उसके लिए 20% लॉस हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड आउटपुट। तो इसलिए यू कैन we can just use it in this blog, बट हमको ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन। एक और उसमें यूज किए थे, कैट कमांड भी यूज किया है। कैट कमांड बेसिकली यूज किसके लिए करते हैं हम लोग, कोई बताए ना, कैट कमांड किसके लिए यूज करते हैं, ये कैट मैंने, अरे बोलो, अरे आप लोग बोलते नहीं। वॉइस लैगिंग, अभी अभी मेरी लैग रही है, पहले से लैग हो रही है। cat command allow us to create, okay, cat command allows to create a single or multiple file, okay। तो अभी क्या मुझे आप बताएंगे कैसे उसको लिखते हैं, कैसे आप लोग बनाएंगे, create file display content, very good। so basically cat command से हम लोग to view content of the file, very good। so I will go to the display cd। अरे बाबा, डेस्कटॉप पे एक फाइल है सैम्पल डॉट सी, ठीक है। अगर मुझे उसको चेक करना है तो सी ए टी कैट सैम्पल डॉट सी, ओके। सो इट विल शो द कंटेंट ऑफ द फाइल बेसिकली, ठीक है। someone please tell me how to create a file using cat command, content basically, yes। so someone can you please tell me how to create a file using cat command, how to create a file using cat command, cat my file, cat file name नहीं ले रहे ना भाई, नहीं ले रहे हैं। so cat not the syntax, proper syntax to create a file, cat my file, अच्छा my file dot c, no still not taking, कैसा करेंगे फिर, याद है किसी को, bracket to get, okay, my file, जैसे angle bracket cat, अच्छा like that, ले लिया, my name is Mukhtar, okay। when I want to save this particular file, what I have to do, for saving purpose, control C, control C, control C, then मैं बाहर आ गया, okay। and now I just want to see whether the file has been created or not। so simply I will out, okay, I have a file, my file name, okay। so my file, I have not mentioned any kind of extension to that particular file, so my file.c, my name is Mukhtar, okay। anyone from you, voice lagging, hello, mic check 1 2 3, mic check, no, मतलब नो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, लिटिल बिट लैग हो रही है, अब पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है। ओके चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ईयरफोन और एयरपॉड्स, कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आई एम गिविंग माय वॉइस टू दी मोबाइल। सो
हो सकता है थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल कर रहा है बेचारा मेरा माइक, सो लेट इट बी। चलो यहीं रखते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, सो मुक्ता एंड दिस इज न्यू वर्जन कंट्रोल सी। ओके, सो ये मैंने फाइल बनाया, इसको चेक करने के लिए cat my file dot c, so this is my file dot c and this is my file। ओके, क्योंकि मेरे my file में कुछ था ही नहीं, ये क्यों शो नहीं कर रहा है? ओके, चलो तो ये हमारी एक कैट कमांड है जिसके थ्रू हम लोग वी कैन क्रिएट अ फाइल, वी कैन क्रिएट अ फाइल, वी कैन सी द कंटेंट ऑफ द फाइल। एक और कमांड है, अगर आप लोग में से किसी ने थोड़ा सा कमांड्स वगैरह स्टडी किए होंगे, सो we'll come to know about that particular command, that is the touch command। let me show you the working of the touch command। touch command, the touch command, the touch command, the touch command, man TOU touch। हमें बार बार मैं ही बोल रहा था, वन आप लोग सोच रहे थे इको है, एको नहीं हो रहा है। मैन टच चेंजेस, चेंज फाइल टाइम स्टैम्प, ये लेकिन इसे क्रिएट करते हैं, जहाँ तक मैंने मुझे याद है मैंने क्रिएट किया था। सो TOU सी टच मुक्ता नाम की फाइल क्रिएट करता हूँ, तो whether the file is created or not, हाँ फाइल क्रिएट हो गई, you can see। तो ये इसको हम टच कमांड को भी यूज करते हैं, ठीक है। सो बाय द वे जो भी है ये सारी कमांड थी, जस्ट मैंने आप लोगों को इसके लिए बताया कि विल गेट सम आइडिया। सो यहाँ पर जो हमने किया है, सो दैट्स द शॉर्टकट का शॉर्टकट। ओके, so you have used only system keyword and you have run your command, you have put your command whatever you want to execute, and it has been executed via C program। So actually in on case of this particular the first, second and third line you have to write a program। Okay, so even I say that case you can take the idea from internet also, from the sources, from the books also, but still you must understand that how you are writing a program, or you can do some customization also in the existing program। You can take any command, कोई भी एक command implement कर रहा है, whether it is ls command, whether it is cp command that is for copying the file, whether it is move command, whether it is cat command, cat command भी आप लोग एक्सेस वो कर सकते हैं, because it is simple। इसमें पहले आपको फाइल फाइल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, इस तरह आपको स्ट्रीम लगेगी, इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम जो है वो आपको लगेगी, ठीक है। इनपुट राइटिंग जो उसके अंदर क्लासेस है वो लगेगी। तो टू यू नाउ। ओके, सो आप लोग को इसका प्रोग्राम लिखना है, घर पे आराम से, यू हैव वन वीक, आराम से देखो, स्टडी करो और कैसे इसका प्रोग्राम लिखना है, डू इट फ्रॉम योर साइड एंड देन मुझे सेंड करो, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा थर्ड एक्सपेरिमेंट, आज हम लोग ये रुकते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोग को बेसिकली प्रोग्राम लिखना है, एंड द वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट इट, दैट की व्हाट यू हैव टू राइट इन द थियरी वन। तो इसमें थियरी में क्या लिखना है, क्या लिखेंगे थियरी में, बोलो। अरे बोलो थियरी में क्या लिखेंगे। स्टॉप द रिकॉर्ड।